स्वामिनारायणः साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। कार्यकर सुवर्ण महोत्सवनी जय। શાંતિના રાજમાર્ગની વાત ચાલી રહી છે. આપણા શાસ્ત્રોએ, આપણી પરંપરાએ, આપણા મનીષીઓએ આપણા ઉપર એક મોટો ઉપકાર કર્યો હોય તો એમણે એક એવી ચાવી આપણને બતાવી દીધી અને એમણે આપણને કહ્યું કે શાંતિ માટે આપણે બહારની પરિસ્થિતિ ઉપર આધાર રાખવાની જરૂર નથી. મનોવૃત્તિ માણસની કેવી હોય છે? ધારો કે આપણે ભગવાનની સામે બેઠા છીએ અત્યારે અને આપણે પ્રાર્થના કરી અને ભગવાન મૂર્તિમાંથી પ્રગટ થઈ અને આપણને એમ કે આ દુનિયામાં કોઈ પણ 5 બાબતો તમે બદલી શકશો. આ દુનિયામાં કોઈ પણ 5 બાબતો તમે બદલી શકશો. એક મિનિટ વિચાર કરો કે શું આપણે કહેશું, શું બદલીએ, શું બદલીશું? ભારતનું અર્થતંત્ર બદલીશું? દેશો વચ્ચેના સંબંધો કે એની પોલિસી બદલીશું? પોલિટિક્સને બદલીશું? આપણું ઘર બદલીશું? આપણા પાડોશીને બદલીશું? ઘરવાળાનો સ્વભાવ બદલીશું? આપણી તબિયત બદલીશું? ઘણું બધું બદલવાનું લિસ્ટ છે આપણી પાસે. 5 વસ્તુ કે તો આપણે શું બદલી નાખીએ? આવા બધા વિચાર આપણને આવશે. કેટલા જણને એવો વિચાર આવે કે હું બદલાઈ જાઉં? લગભગ ન આવ્યો, ઓછો આવે. પણ જ્યાં સુધી આપણે નહીં બદલાઈએ ને ત્યાં સુધી આખી દુનિયા બદલાઈ જશે ને તોય શાંતિ થવાની નથી. અને જ્યારે આપણે બદલાઈ જઈશું ત્યારે દુનિયા આવીને આવી હશે ને તોય આપણને પરમ શાંતિ ને સુખનો અનુભવ થવાનો છે. એટલે કે ચાવી આપણા હાથમાં છે. એ આપણી પરંપરાએ આપણા પર ઉપકાર કર્યો છે ને એમણે ખાલી વાતો નથી કરી, એમને પ્રેક્ટિકલી આપણને જીવી બતાવ્યું છે કે આ દુનિયામાં એક પણ વ્યક્તિ કે એક પણ પરિસ્થિતિ એવી નથી કે જે આપણને દુઃખી કરી શકે. જો આપણે દુઃખી ન થવું હોય તો. અને એ પણ એટલું જ સાચું છે કે આ દુનિયામાં એક પણ વ્યક્તિ કે એક પણ પરિસ્થિતિ એવી નથી કે જે આપણને સુખી કરી શકે. જો આપણે સુખી થવા માટેની યોગ્યતા ન કેળવી હોય તો બાજી આપણા હાથમાં છે. અને એ બાજી છે અંતર્મુખ થવામાં. એ બાજી છે પોતાની જાત સામે જોવામાં. આપણે વચનામૃતના વચનોને આધારે, સત્પુરુષના કૃપા વચનોને આધારે એ સમજ્યા કે જ્યાં સુધી આપણને કોઈના પણ પ્રત્યે અણગમો હશે, દ્વેષ હશે, ત્યાં સુધી મજા નહીં આવે. એ વ્યક્તિ જેવી હોય એવી. પણ આપણને જો કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ, અણગમો, અભાવ કંઈ પણ થયું તો એનું તો જે થવાનું હોય તે આપણને તો અશાંતિ થાય ને થાય જ. એટલે આપણી શાંતિ માટે કોઈનોય અભાવ નહીં.
આપણી શાંતિ માટે બધાને માફ કરી દેવા, આપણી શાંતિ માટે બધાનું ભલું ઈચ્છવું અને જેટલું થઈ શકે એટલું ભલું કરવું, આ પહેલી બાબત છે. બીજી વસ્તુ આપણે એ જોઈ કે સિદ્ધાંતોની બહાર જ્યારે આપણે જઈએ છીએ ને, એક પ્રસંગ છે કે એક વખત યુએસ આર્મીનું એક જહાજ, યુએસ નેવીનું એક જહાજ રાતના સમયે દરિયામાં જતું હતું ને રસ્તામાં સામે એક બીજા કોઈક જહાજની લાઇટ દેખાણી એને, એટલે એને લાગ્યું કે આ અમારા રસ્તામાં વચ્ચે આવે છે, એટલે એણે વાયરલેસથી સંદેશો મોકલ્યો કે તમે અમારા રસ્તામાં આવો છો, તમે 15 ડિગ્રી તમારી દિશા બદલી નાખો. તો સામેથી વાયરલેસમાં મેસેજ આવ્યો કે અમે નહીં બદલાઈએ, તમે બદલાવો. તો આણે મેસેજ મોકલ્યો વાયરલેસમાં, હું કેપ્ટન બોલું છું, તમે તમારો રસ્તો 15 ડિગ્રી બદલી નાખો. સામેથી જવાબ આપ્યો કે હું એક ઓર્ડિનરી લેમેન બોલું છું, પણ હું રસ્તો નહીં બદલું, તમે બદલો. તો આણે પાવરથી ત્રીજો મેસેજ મોકલ્યો કે હું યુએસ નેવીમાંથી બોલું છું, તમે રસ્તો બદલી નાખો. સામેથી જવાબ આવ્યો કે હું રસ્તો નહીં બદલી શકું, કારણ કે હું તો દીવાદાંડી પરથી બોલું છું. એટલે આને બદલી નાખ્યો. તમે ગમે તે હો, દીવાદાંડી બદલાતી નથી, તમારે જ બદલાવવું પડે છે. સિદ્ધાંતો દીવાદાંડી જેવા હોય છે, આચરણના સિદ્ધાંતો. એને મૂકીને કોઈ પણ હોય, એ દુનિયાનો શહેનશાહ હોય ને, તો પણ ધર્મના સિદ્ધાંતો, શાસ્ત્રના નિયમો, એ મર્યાદાને ઉલ્લંઘન કરીને વર્તે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, યે શાસ્ત્ર વિધિમ ઉત્સૃજ્ય વર્તતે કામકારતઃ ન તે શાંતિમ અવાપ્નોતિ ન સુખમ ન પરામ ગતિ. આ સિદ્ધાંતો દીવાદાંડી જેવા છે. એને મૂકીને જે ધર્મની મર્યાદાને ઓળંગે છે, એ રાવણ હોય તોય ભલે, એ હિરણ્યકશિપુ હોય તોય ભલે, અને એ આજના જમાનાનો કોઈ આધુનિક મિલિયોનર કે બિલિયોનર હોય તોય ભલે, મર્યાદાને ઓળંગે એટલે અશાંતિ થાય અને થાય જ. ત્રીજી વાત આપણે એ જોઈ હતી અશાંતિનું કારણ. ત્રીજી વાત એ છે, તૃષ્ણા માણસને દુઃખી કરે છે. સંતોષ તરફ આવવું જ પડશે. જ્યાં સુધી તૃષ્ણા છે ત્યાં સુધી કોઈ સુખી થતું નથી. એ પાછી વૃત્તિ વાળવાની વાત આવી. ચોથી બાબત આપણે ગઈકાલથી સમજીએ છીએ કે સ્વામિનારાયણ ભગવાને કીધું સમજવું હોય તે સુખી થાય છે. દુઃખનું કારણ અજ્ઞાન છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ વાતોમાં કહ્યું, આ લોકમાં 2 દુઃખ છે, અન્ન વસ્ત્ર ન મળે અથવા તો ન પચે. આ 2 દુઃખ છે. એ સિવાયનું જેટલું કંઈ દુઃખ છે ને, બધું અજ્ઞાનનું દુઃખ છે. હવે એકદમ અંતર્દ્રષ્ટિ કરાવે એવી બાબત છે કે આપણામાંથી એવું કોઈ છે કે જેને અઠવાડિયાથી ખાવા જ ન મળ્યું હોય, અન્ન મળ્યું જ ના હોય, એવું તો આપણામાંથી કોઈ છે નહીં. અથવા એવું કોઈ છે કે અઠવાડિયાથી આપણે ખાઈ જ ન શક્યા હોઈએ, પચતું જ ના હોય, એવું નથી. અન્ન વસ્ત્ર મળે છે, હા મળે છે. પચે છે, હા પચે છે. તો પણ આપણા હૃદયનો કોઈ એવો ભાગ છે કે જેમાં દુઃખ છે, ગ્લાનિ છે, હતાશા છે, ચિંતા છે, ઉદ્વેગ છે. એવો અંતરનો કોઈક ભાગ છે. જો છે તો નક્કી આપણે કોઈક અજ્ઞાનનો ભોગ બન્યા છીએ. એ અજ્ઞાનનું દુઃખ છે, જે આપણને પણ ખબર નથી. અજ્ઞાન છે પણ આપણને ખબર નથી કે અજ્ઞાન છે. કોઈને એવું સ્વીકારવાનું ગમતું નથી કે હું અજ્ઞાની છું, પણ કોઈક અજ્ઞાન છે, ગેરસમજણ છે, જે આપણને દુઃખી કરે છે. અને જે દુઃખ અજ્ઞાનથી થયું હોય, એ દુઃખને ટાળવા માટે જ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. અંધારાને દૂર કરવા માટે પ્રકાશ સિવાયનો બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. તમે ગમે એટલા ધોકા મારો, અંધારું ના જાય, પ્રકાશ જ જોઈએ. એમ જે અજ્ઞાનથી જે દુઃખ આવ્યું છે, એને હટાવવા માટે જ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી.
જ્ઞાન માટે બીજો શબ્દ વપરાય છે સમજણ. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે સમજવું હોય એ સુખી થાય છે. સખી સમજણમાં ઘણું સુખ છે. હવે એ સમજણની વાત આપણે ગઈકાલે સમજતા હતા કે સ્વામિનારાયણ ભગવાને 3 સમજણો બતાવી. પહેલી સમજણ બતાવી કે દેહથી નોખો જે આત્મા, તેનું જે નિરંતર અનુસંધાન, એ જ્યારે આપણને રહે, જેટલો સમય આપણે દેહથી જુદા છીએ, આત્મા છીએ, ચૈતન્ય છીએ, અક્ષર છીએ, ભલે 5 મિનિટ તો 5 મિનિટ, જેટલો સમય આપણને દેહથી જુદા પડીએ છીએ એટલો સમય આપણે શાંતિ તરફ વધીએ છીએ આગળ. એટલે આપણું આ રોજનું સ્વાધ્યાય કાર્ય છે કે આપણે વિચાર કરીએ કે હું દેહ નથી પણ હું આત્મા છું. બીજી વાત મહારાજે કીધી કે જગતના નાશવંતપણાનું અનુસંધાન. જે જગતમાં આપણે રહીએ છીએ, આપણે જે કંઈ જોઈએ છે આપણી નજરથી, એક દિવસ એવો આવશે એ રહેવાનું નથી. આ દેહ છોડવાનો છે, દેહ સાથે જોડાયેલ આખું જગત આપણે પણ છોડવાનું છે. એક દિવસ આ બધું મૂકીને જવું છે. એ વિચાર આપણને શાંતિ અને સુખ તરફ લઈ જાય છે. કારણ વગરની અશાંતિમાંથી આપણે બહાર નીકળીએ છીએ. અને ત્રીજી સમજણ મહારાજે કીધી એ સૌથી મુખ્ય સમજણ છે. મહારાજ કહે છે ભગવાનના મહાત્મ્ય જ્ઞાનનું જે અનુસંધાન, આ ત્રીજું અનુસંધાન છે, સૌથી મુખ્ય છે. અને આમ જુઓ તો ઇનફેક્ટ શાંતિનો જે રાજમાર્ગ શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ ને, ધીસ ઇઝ ધી રાજમાર્ગ. આ જ રાજમાર્ગ છે. જો ભગવાનમાં જોડાણ છે તો બધું જ છે, જો ભગવાનમાં જોડાણ નથી તો કાંઈ જ નથી. એ શાંતિનો મહાસાગર જ એ છે. આ લાઇટ ચાલે છે, પંખા ચાલે છે, માઇક્રોફોન ચાલે છે, પાવર હાઉસ સાથે કનેક્શન છે, એટલે ભગવાન પાવર હાઉસ છે. કનેક્શન છે તો બધું જ છે. એમની સાથેનું કનેક્શન ગયું તો બધું જ ગયું. ભગવાન સાથેનું કનેક્શન. શ્રીમદ ભાગવતમાં આરંભે મહર્ષિ વેદ વ્યાસજીની વ્યથાની વાત આવે છે. સરસ્વતી નદીના તટ પર વ્યાસજી બેઠા છે, ઉદાસ છે. અંતરની અંદર એક પ્રકારનો ખાલીપો અનુભવાય છે. અને એને એ વાત સમજાતી નથી કે મને કેમ મજા નથી આવતી, મને કેમ બેચેની રહ્યા કરે છે. વ્યાસજી પોતે આખા જીવનની યાત્રાનો તપાસ કરે છે કે મેં મારા જીવનમાં શું શું કર્યું છે, ને પોતે યાદ કરે છે કે મેં હંમેશા શાસ્ત્રોની મર્યાદાનું પાલન કરેલું છે. માણસો ઘણી વખત દુઃખી થતા હોય છે શાસ્ત્રોની મર્યાદાને ઉલ્લંઘવાને લીધે. મેં તો શાસ્ત્રની મર્યાદાનું પાલન કરેલું છે. મેં ગુરુને અને અગ્નિને હંમેશા આદર આપ્યો છે, એટલે કે મેં વિધિવત બધા જ સંસ્કારોનું અનુષ્ઠાન કરેલું છે. આગળ વાત કરે છે કે મેં આત્મજ્ઞાનને પણ પ્રાપ્ત કર્યું છે. એ અજ્ઞાની નહોતા, આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને બેઠા હતા. પછી આગળ વિચાર કરે છે મેં કેટલું પ્રદાન કર્યું છે. વેદના વિભાગો કર્યા છે, બ્રહ્મસૂત્રોની રચના કરી છે, પુરાણોની રચના કરી છે, અને મહાભારતની રચના કરી છે. જેનો હેતુ જ એ છે કે આ સંસારમાં સામાન્યમાં સામાન્ય વ્યક્તિ હોય એ પણ પોતે પોતાના શ્રેયના માર્ગે આગળ વધી શકે. એટલા માટે મેં મહાભારતની રચના કરી. જે મહાભારત માટે એવું કહેવાયું કે યદિ હાસ્તિ તદન્યાત્ર યન્ને હાસ્તિના તત્ક્વચિત. જો મહાભારતમાં છે તો દુનિયામાં છે, મહાભારતમાં નથી તો ક્યાંય નથી. એવું મહાભારત મેં રચીને આપ્યું. મેં આટલું બધું કર્યું પણ મને કેમ શાંતિ થતી નથી. એ ચિંતામાં પોતે ઊંડા ઉતરી ગયા હતા. એવામાં નારદજી પધાર્યા અને નારદજીએ એમની મુખાકૃતિ જોઈને કહ્યું કે કેમ ઉદાસ છો? વ્યાસજી કે મને એ જ ખબર પડતી નથી કે મને કેમ મજા આવતી નથી. નારદજીએ કહ્યું કે તમે બહુ સારું કામ કર્યું છે, આ બધા કામ તમે સારા કર્યા છે, પણ ઘણા બધા સારા કામ કરવામાં સારામાં સારું કામ કરવાનું રહી ગયું છે. બેસ્ટનો એનિમી બેડ નથી, પણ બેસ્ટનો એનિમી ગુડ છે એવું કહેવાય છે.
ઘણી વખત વ્યક્તિ એ ભ્રાંતિમાં રહે છે કે હું તો સારું કામ કરું છું ને. આપણે એને મંદિરે આવવાનું કહે તો કે જો હું કોઈનું ખરાબ કરતો નથી, હું વ્યસન દૂષણ કરતો નથી, સદાચારી જીવન જીવું છું, મારાથી થાય એટલું સમાજની સેવા કરું, મારે મંદિરે આવવાની શું જરૂર? આવા લોકો મળશે તમને. એનો જવાબ વ્યાસજી છે. વ્યાસજી કહે છે કે મેં બધા સારા કામ કર્યા છે પણ કેમ અશાંતિ થાય છે? નારદજી કહે છે કે મુખ્ય બાબત રહી ગઈ છે, તમે પ્રગટ ભગવાનના મહિમાનું ખુલ્લા કંઠે ગાન કર્યું નથી, એમના મહિમામાં તમે સંલગ્ન થયા નથી. વ્યાસજી કે શું વાત કરો છો? મેં મહાભારતમાં કૃષ્ણ ભગવાનની વાત નથી કરી? આમે શાસ્ત્રો લખ્યા છે, કંઈ ફિલ્મના ગીત લખ્યા છે? મેં એમાં ભગવાનની વાત નથી કરી? નારદજી કે કરી છે, કરી છે. પણ તમારે શું છે, મહાભારતની અંદર તમારે ધર્મની પણ વાત કરવી છે, અધર્મની પણ વાત કરવી છે, સત્યની અને અસત્યની વાત કરવી છે, નીતિ અને અનિતિની વાત કરવી છે, ન્યાય અન્યાયની વાતો કરવી છે, માણસના સ્વભાવોની વાત કરવી છે. આવી ઘણી બધી વાતો કરતાં 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 વચમાં ભગવાનની વાત આવી ગઈ છે. તમારું લક્ષ્ય એ નથી. तो आपने जो किया है अभी, उसमें क्या किया कि आपने पूरे संसार के अच्छे अच्छे काम किए, परंतु जो मुख्य कार्य था, मुख्य कार्य क्या कि प्रगट भगवान का खुले कंठ से आपने गान नहीं किया है. और पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले नंबर की चीज़ को दूसरे नंबर पर भी रखेंगे ना तो जो परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. व्यास जी को अंतर्दृष्टि हो गई और उन्होंने तब से श्रीमद् भागवत में वेणे वेणे शब्द शब्द पर उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान की महिमा का गान किया. और तब जाकर व्यास जी के मन में शांति का अनुभव हुआ. शांति का केंद्र स्थान परमात्मा है और भगवान के साथ हमारा संलग्नता हो, प्रगट भगवान के साथ. हमारे शास्त्रों ने हमें यह बताया कि भगवान धाम में तो विराजमान है, भगवान अणु अणु में तो व्यापक है, पर वे भगवान जब हमारे जैसे होकर इस धरातल पर अवतीर्ण होते हैं तब भगवान को पहचानना और तब भगवान की भक्ति करना वह अलग बात है. स्वामीनारायण भगवान ने विशेष बात कही. उनका एक वरदान है वरताल के 19वें वचनामृत में. उन्होंने कहा कि जब जब इस पृथ्वी पर मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है, भरतखंड में जब कभी भी शरीर प्राप्त होता है तब या तो भगवान स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होते हैं अथवा भगवान के धारक संत अवश्य पृथ्वी पर प्रकट होते हैं. उनकी जब पहचान होती है तब वह भक्त बनता है. यदि भगवान के वचन सत्य हैं, यदि शास्त्रों के वचन सत्य हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज मतलब 4 अगस्त 2024 शाम के 6:09 के समय पर इस पृथ्वी पर जिसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, अल्टीमेट एंटिटी कहते हैं, सुप्रीम पावर कहते हैं, जो भी एक पर तत्व को कहते हैं, वह तत्व इस समय पर, इस क्षण पर हम देख सके ऐसे स्वरूप में पृथ्वी पर प्रकट हैं. यह वचनामृत का वचन है. इसी समय प्रकट है. बात कहाँ पर है? उनकी पहचान हो जाए तो वह भगवान का भक्त बन जाता है. और जब ऐसा भक्त बना तो कुछ बाकी नहीं रहता. बहुत कठिन होता है जब भगवान पृथ्वी पर विचरण करते तब उनको पहचानना मनुष्य के रूप में. रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरित्र का आलेखन करते हुए एक प्रसंग शुरू में ही लिखा है कि जब रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में वन में भटक रहे थे, उस समय रामचंद्र जी ने ऐसी लीला की थी कि कोई एक अज्ञानी मनुष्य अपनी पत्नी को खोजने के लिए जिस तरह पागल बन जाता है, उसी तरह से
रामचंद्र भगवान पत्थर को पूछते थे, पेड़ को पूछते हैं कहाँ है सीता, कहाँ है सीता, रोते रोते भटकते थे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस समय गगन मार्ग से भगवान शिवजी भगवती उमा के साथ विहार करते हुए वहाँ से निकले। और जब शिवजी ने रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी को देखा तो वहाँ से प्रणाम करते हुए बोले, जय सच्चिदानंद। सती को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा आपने किसको प्रणाम किया? शिवजी ने कहा कि भगवान को। बोले किस भगवान को? ये जो रामचंद्र जी उनको। संशय हुआ उमा के मन में। उन्होंने कहा कि यह तो कोई ऐसा राजकुमार है जो अपनी पत्नी के पीछे पागल है और उसे पता तक नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ पर है, और उसको आप भगवान कहते हैं। समझ में नहीं आया उनके मन में इच्छा हुई कि मैं इनकी परीक्षा करना चाहता हूँ। भगवान की भी परीक्षा करने के विचार आते हैं हमारे मन में। मैं इनकी परीक्षा करना चाहती हूँ, और गई परीक्षा करने के लिए। और उन्होंने परीक्षा किस तरह से की? सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया। रामचंद्र जी के मार्ग में पूज्य डॉक्टर स्वामी जी हमारी सभा में पधारे हैं। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। रामचंद्र जी की परीक्षा करने के लिए गई उमा जी, और माता जी ने क्या किया कि सीता माता का स्वरूप धारण कर लिया। उनके मन में था कि जब रामचंद्र जी मुझे देखेंगे इस स्वरूप में तो देखता हूँ कैसे पागल हो जाते हैं। रामचंद्र जी रोते रोते आते थे, भटकते भटकते आते थे, और सामने सीता जी के स्वरूप में उमा जी को देखा। तब हाथ जोड़कर बोले, माता जी अकेली क्यों आई हैं? शिव जी कहाँ पर हैं? बहुत ही शर्मिंदा हो गई, कर इनको सब कुछ पता है, ये सब कुछ जानते, तो ये हो क्या रहा है? उनको पता चला कि यह ड्रामा है। भगवान और संत जब मनुष्य के रूप में होते हैं तब वे नाटक करते हैं, और उस नाटक में जो भक्त होते हैं वह समझ जाते कि यह नर नाट्य है। जो उस नर नाट्य स्वरूप में भगवान को पहचान लेते हैं, उनके हृदय में भगवान के स्वरूप की निष्ठा विचल देते हैं। श्री कृष्ण भगवान उनके समय में जब गोकुल वृंदावन में बच्चों के साथ वे गो चराने के लिए जाते थे, उस समय भूख लगी बच्चों को। पास में ही मथुरा के कुछ पंडित थे, यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा करके आहुति दे रहे थे। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि उनके पास जाकर के कहो कि कृष्ण को भूख लगी है, कुछ खाना दीजिए। बच्चे गए, ऋषियों ने जवाब नहीं दिया, अनादर किया। वापस लौटे, कृष्ण भगवान ने कहा उनकी पत्नियों के पास जाओ। और जब ऋषि पत्नियों के पास गए तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की महिमा समझकर उनकी सेवा की। तब भागवतकार ने कहा कि ऋषि परिताप में रह गए, पश्चाताप में रह गए, प्रगट भगवान को पहचान नहीं पाए। शास्त्र के ज्ञाता तो थे, परोक्ष स्वरूप में आराधना तो करते थे, लेकिन सामने से जब भगवान आए पहचान नहीं पाए। और ऋषि पत्नियां न्याल हो गई, प्रगट भगवान के दर्शन, आशीर्वाद, सेवा के अधिकारी बन गई। स्वामीनारायण भगवान जब इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उस समय पर जिन्होंने उनको पहचान लिया उनका काम बन गया। देखिए, पहचानने वाले वैसे साधारण तो नहीं थे। स्वामीनारायण भगवान के परमहंसों को हम याद करें, एक एक संत, एक एक परमहंस ऐसे थे जो स्वयं भगवान होकर पूजे जाए, ऐसे थे। आप देखिए गोपालानंद स्वामी को, एक भक्त ब्राह्मण के लिए उन्होंने चंद्र ग्रहण की गति को रोक दिया था। पूरे ब्रह्मांड की गति को बदल सके ऐसी शक्ति वाले ये सब परमहंस थे। अरे बोटाद में घोड़ी मर गई थी,
हमीर खाचर के दरबार ने तो उस समय व्यापकानंद स्वामी ने मच्छर का जीव लेकर घोड़ी में डाला, घोड़ी को जिंदा कर दिया। मरे हुए को जिंदा कर दे ऐसी शक्ति वाले ये सब साधु थे। उनकी साधुता को हम देखें तो उनके तोले कोई आ सके ऐसा नहीं था। उनकी विद्वत्ता में वे श्रेष्ठ थे, व्यवहार कुशलता में वे अजोड़ थे, हर एक दृष्टि से वे पूजे जाए ऐसे थे। परंतु वे सारे संत, उन्होंने स्वामीनारायण भगवान को मनुष्य के रूप में पहचान लिया और उनकी मनुष्य के रूप में भक्ति की, ऐसी भक्ति की हमारे इतिहास में, हजारों हजारों वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा बना है कि भगवान सामने हैं और भगवान की उपस्थिति में उनकी महिमा के हजारों हजारों काव्य बने हो, ऐसा पहली बार बना। महान भक्त कवि हुए हमारे यहाँ पर, सूरदास जी हुए, मीराबाई हुई, नरसिंह मेहता हुए, महान भक्त कवि हुए, अद्भुत कीर्तन लिखे हैं उन्होंने। परंतु उनकी एक व्यथा यह थी कि जिनकी भक्ति वे करते थे उनकी नज़रों के सामने वह स्वरूप नहीं था, पहले हो चुका था। इतिहास में पहली बार ऐसा बना स्वामीनारायण भगवान के समय में कि उनके 500 संत ऐसे थे, स्वयं भगवान होकर पूजे जाए ऐसे। उन्होंने हजारों भक्ति पद बनाए कि ये हमारे सामने जो है वह भगवान है, ऐसा मानकर उसकी प्रतीति के साथ उन्होंने भक्ति की, प्रगट भगवान की भक्ति। और स्वामीनारायण भगवान की करुणा को देखो, उन्होंने वरदान दे दिया, जब धर्म धूरा धारण की उसी वक्त मेरे भक्त के भाग्य में भिक्षा पात्र होगा, मैं भीख मांगूंगा, भक्त को कभी अन्न और वस्त्र के कारण दुखी नहीं होने दूंगा। उनकी वेदना मैं सहन करूंगा, भक्त को दुखी नहीं होने दूंगा। उन्होंने वरदान दिया, मेरे एक एक भक्त को मैं अंतकाल में स्वयं लेने के लिए जाऊंगा। यह मेरा वरदान है, यह मेरा बिरुद है, यह मेरा वचन है, वह कभी बदलेगा नहीं। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि मैं स्वयं पृथ्वी पर संत के स्वरूप में प्रकट रहूंगा। यह उनकी सबसे बड़ी करुणा है, संत स्वरूप में भगवान को प्रकट रूप में पहचानना। शास्त्र में संत के लक्षण दिए हैं। आज हम महंत स्वामी महाराज को देखते हैं, एक और उपनिषद के वचनों को रखिए, श्रीमद् भगवद गीता के वचनों को रखिए, श्रीमद् भागवत के वचनों को रखिए, वचनामृत के वचनों को रखिए, गुणातीतानंद स्वामी की बातों के वचनों को रखिए और एक बार और महंत स्वामी महाराज का जीवन रखिए, तो हमें प्रतीत होता है ये सारे वचन जिस संत की स्तुति करते हैं वे संत महंत स्वामी जी महाराज है, क्योंकि उनका जीवन प्रत्यक्ष जीवन है हमारी नज़रों के सामने। आज इस धरातल पर एक एक वचन को यदि हम देखें, हमें प्रतीति होती है कि भगवान हमें प्रत्यक्ष मिले हैं संत के स्वरूप में। हाँ, उनकी विशेषता यह है कि वे कभी अपना बड़प्पन किसी को दिखाते नहीं हैं, यही तो उनकी महत्ता है। वे कभी चमत्कार दिखाकर लोगों में अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश नहीं करते, वे तो अपने सामर्थ्य को भी ढांक कर रखते हैं, जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी वे सर्वज्ञ होने के बाद भी स्वयं अपने ऐश्वर्य को ढांक कर रखते हैं, जानते हैं सब कुछ। महंत स्वामी जी महाराज 2015 में न्यूजीलैंड में, साउथ न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में थे और उस समय वहाँ एक सत्संगी भक्त थे, कार्यकर्ता संजय भाई, उनके घर उनका निवास था। तो ओरिजिनली कार्यक्रम ऐसा था कि 2 दिन उनका निवास वहाँ पर, 3 दिन का निवास तय किया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि ये छोटा सा सेंटर है, बहुत ही कम हरिभक्त है, तो यहाँ 3 दिन की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन काफ़ी है। तो 2 दिन का कार्यक्रम रखते हैं और एक दिन महंत स्वामी जी महाराज को क्वींस टाउन ले जाते हैं, जो कि पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है, और वहाँ जा कर के हम सत्संग गोष्ठी करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ, ऐसा उन्होंने आयोजन कर दिया। और आयोजन के अनुसार अगले दिन, मतलब कि जिस दिन जाना था उसके पिछले दिन कुछ संत पहले से पहुंच गए, कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए पूर्व तैयारी करने के लिए। कार्यक्रम ऐसा था सुबह 9 बजकर, तीसरे दिन सुबह 9 बजे निकलना था फ्लाइट में। एयरपोर्ट पर समय पर सब पहुंच गए, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वेदर बदल गया और थंडर स्टॉर्म आ गया। इतना पवन था, इतना भवंडर था, इतनी बारिश थी। घोषणा हुई कि जब तक ये वातावरण अच्छा नहीं होगा तब तक प्लेन उड़ नहीं पाएगा। तो वहाँ पर राह देखनी थी, कल घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा गुजर गया।
फिर भी वातावरण बदला नहीं। फिर सभी को लगा कि अब तो 12 बज गए हैं, तो महंत स्वामी जी को ऐसा करते हैं कि पास में ही संजीव भाई का घर है, तो वहाँ भोजन करने के बाद आए, तब तक वातावरण अच्छा हो जाए तो प्लेन उड़ेगा। ऐसा तय हुआ। स्वामी जी गाड़ी में बैठ गए, संजीव भाई के घर की ओर जाने के लिए निकले, और जैसे ही 2-5 मिनट में तो ऐसा हुआ वातावरण शांत हो गया और अब प्लेन उड़ने की तैयारी होने लगी। तो फ़ोन किया कि अब स्वामी जी को वापस ले आओ। तब महंत स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब मेरी इच्छा नहीं है, तुम लोग जाओ। तो वे लोग जो थे चले गए। यहाँ पर स्वामी जी निवास स्थान पर आए, हसमुख भाई नाम के कार्यकर्ता उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आश्चर्यजनक है, ऐसा कोई फोरकास्ट तो नहीं था वेदर का, फिर भी क्यों ऐसा हुआ? स्वामी जी ने कहा कि भगवान की इच्छा से हुआ। और फिर महंत स्वामी जी महाराज बोले मेरी भी इच्छा ऐसी ही थी। तो कहा आपकी इच्छा ऐसी क्यों थी? तब महंत स्वामी जी बोले किशन का संकल्प पूरा करने के लिए। अब किशन कौन था? जिसके घर उनका निवास था, उनका लड़का। तो हसमुख भाई ने पूछा कि किशन का संकल्प क्या था? कहा कि इनका संकल्प था कि मैं 3 दिन तक यहाँ रहूं। तो कहा कि किशन ने आपसे कहा था? तो महंत स्वामी जी बोले नहीं, नहीं कहा था। तो आपको कैसे पता चला? स्वामी जी बोले आज सुबह वह भगवान की पूजा कर रहा था और ध्यान में, मानसी पूजा में वह भगवान को प्रार्थना करता था कि महंत स्वामी जी 3 दिन यहाँ पर रहे। ये बात तो पूरी हो गई। स्वामी जी कमरे में गए, उसी समय किशन बाहर से आया। उसे पता नहीं था कि यह कार्यक्रम बदल चुका है। जैसे ही आया, हसमुख भाई ने पूछा कि आज सुबह तुमने कोई प्रार्थना की थी पूजा में? उसने कहा आपको किसने कहा? बोलो कोई प्रार्थना की थी? कि हाँ प्रार्थना की थी, स्वामी जी 3 दिन तक ठहरे यहाँ पर। बोले कि जाओ, स्वामी जी ने तुम्हारा संकल्प पूरा किया, वे अंदर बैठे हुए हैं, वे हमारे मन के संकल्पों को जानते हैं। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं, बोलते नहीं हैं। एक बार सुरेंद्र नगर में स्वामी जी से पूछा कि आप हमारे हृदय का सब कुछ जानते हैं, हमारे हृदय के मलिन भावों को भी आप जानते हैं, फिर भी आप कभी बताते नहीं हैं। स्वामी जी ने कहा कि यदि हम बोलेंगे तो यहाँ से उठकर सब चले जाएंगे, कोई यहाँ बैठेगा नहीं। कहे कि सत्पुरुष बहुत ही दयालु होते हैं, समर्थ होने के बाद भी अपने सामर्थ्य को ढांक कर मनुष्य जैसे बनकर हमारे साथ रहते हैं। उनकी विशेषता यह है कि निरंतर भगवानमय रहते हैं। अपनी हर एक क्रिया में वे स्वयं को केवल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, भगवान को कर्ता मानते हैं। और वही अपने चरित्र से बताते थे कि शांति का राजमार्ग यही है। भगवान की महिमा को समझना मतलब यह समझना कि इस दुनिया में जितने भी आश्चर्य हैं, स्वामीनारायण भगवान ने प्रथम के 27वें वचनामृत में बताया, सारे आश्चर्यों के कर्ता प्रत्यक्ष भगवान ही हैं। ऐसा जब समझते हैं तब भगवान हृदय में निवास करने लगते हैं। सभी आश्चर्यों के कर्ता भगवान हैं। स्वामीनारायण भगवान ने कहा इस पृथ्वी स्थिर रहती है, यह पृथ्वी स्थिर रहती है, यह आकाश में से बारिश होती है, सूर्य चंद्र उदय अस्त होते हैं, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, जल के बिंदु में से मनुष्य प्रकट हो जाते हैं। जितने भी आश्चर्य इस दुनिया में होते, सारे आश्चर्य मुझे मिले जो प्रत्यक्ष भगवान उन्हीं के द्वारा होता है। हम जहाँ जहाँ भी देखें आश्चर्य ही आश्चर्य हैं। एक दृष्टि, जब किसी आश्चर्य को देखे हमारे मन में यह विचार आए, ये करने वाले भगवान हैं और वे भगवान मुझे प्राप्त हुए हैं संत के स्वरूप में, गुरु के स्वरूप में। ऐसी निष्ठा से हमारे हृदय में शांति होती है। अब प्रश्न क्या होता है, आमतौर पर कोई भी व्यक्ति बोलता है कि ये सब भगवान का किया हुआ होता है, ये सारी सृष्टि उन्होंने बनाई, ये ब्रह्मांडों के कर्ता वे हैं। तब तक तो कोई सवाल नहीं होता, परंतु सवाल तब होता है जब हमारे जीवन में कोई चिंता आती है और उस समय हमें संभालना कि ये भगवान करता है। चिंता हर एक व्यक्ति के मन में कल की चिंता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। जब बच्चा जन्म लेता है माता पिता को पढ़ाई की चिंता होती है, जब पढ़ लेता है तो नौकरी की चिंता होती है, जब नौकरी लग जाती है विवाह की चिंता होती है, विवाह हो जाता है उसके बच्चे की चिंता होती है, जब उसका संतान हो जाता है उसकी पढ़ाई की चिंता होती है, जब उसकी पढ़ाई हो जाती है उसकी नौकरी की चिंता रहती है, उसकी शादी की चिंता। यह साइकिल है। कल की चिंता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भले ही चिंता हो। भगवान को कर्ता मानना मतलब क्या?
भगवान को प्रार्थना करना, हमारी चिंता उन्हें सौंप देना। यह सत्पुरुष अपने जीवन से हमें सिखाते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है उनके विश्वास है करता भगवान है। 2010 के वर्ष में जब गांधीनगर में वाटर शो का निर्माण हुआ, अब उस समय यह भारत में पहला वाटर शो ऐसा बन रहा था जिसमें उपनिषद की कथा को आधुनिकतम माध्यमों से वाटर शो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। वाटर स्क्रीन पर प्रोजेक्शन होता था और अनेक प्रकार से लेसर प्रेजेंटेशन होता था, लेसर शो होता है। उसका उद्घाटन समारोह था 3 अप्रैल के दिन। तो पूरी तैयारियां हो चुकी थी। उस उद्घाटन समारोह में 2000 महानुभावों को निमंत्रित किया गया था, लेकिन उसके पूर्व तैयारी के रूप में 2 दिन पहले उसका जब टेस्टिंग हुआ, तब टेस्टिंग के समय किसी ने नहीं सोची थी ऐसी समस्या आ गई कि उस समय बहुत ही पवन था और पवन का जोर इतना था कि जो वाटर स्क्रीन था वह स्क्रीन ही नहीं रहता था, तो प्रोजेक्शन कहाँ पर करें। और पानी इतना उड़ता था कि जहाँ पर वीआईपी को, मोस्ट वीआईपी को बिठाना था, एक एक व्यक्ति के ऊपर एक एक बाल्टी पानी डालने पर कैसा हो जाता है, ऐसा व्यवस्था हो जाती थी। अब उद्घाटन समारोह में ऐसा हो तो क्या हो सकता है। वेदर फोरकास्ट में देखा तो कहा कि अगले 15 दिन तो ऐसे ही पवन रहने वाला है। सब गए प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास, आयोजक संत, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी इसमें क्या करें, समस्या ऐसी है कि अब तो हमें उद्घाटन समारोह पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेदर फोरकास्ट कहता है कि ये पवन तो कम नहीं होने वाला 15 दिन तक, और परसों हमारा यह कार्यक्रम है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सब सुन लिया और फिर शांति से स्वामी ने कहा कि विश्वास रखो, अब तक, आज तक भगवान ने हमारी लाज रखी है तो आगे भी रखेंगे। अब हम ये भूल जाते हैं, आज तक भगवान ने कितनी बार हमारी लाज रखी है। 10 बार लाज रखी हो, लेकिन 11वीं बार फिर से चिंता हो जाती है, ये होगा या नहीं होगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा विश्वास रखो। स्वामी जी लेकिन इसमें तो विश्वास तो रखे, लेकिन ये सच में यदि ये ऐसा पवन चलेगा तो ये हमारा प्रोग्राम फेल होगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज बोले विश्वास रखो, भगवान कृपा करेंगे, पवन स्थिर हो जाएगा, पत्ता तक नहीं हिलेगा। विश्वास के बल पर सभी ने कहा चलो कार्यक्रम रखते हैं। दूसरे दिन टेस्टिंग किया, शाम को इतना ही पवन था, पवन कम नहीं हुआ था। तीसरे दिन सुबह उतना ही पवन था, शाम को 5 बजे सभा शुरू हो गई, पवन कम नहीं हुआ था। सभा शुरू हो गई, प्रवचन पूरे हो गए, अब शो शुरू करना था, तब तक पवन उतना ही था। और जैसे ही स्विच ऑन किया और पवन की स्विच ऑफ हो गई, पवन स्थिर हो गया, पत्ते तक स्थिर हो गए और बहुत अच्छी तरह से पूरा शो हो गया। और जैसे ही शो पूरा हो गया पवन चालू हो गया। लेकिन स्वामी जी ने क्या सिखाया हमें, विश्वास रखो, आज तक भगवान ने हमारी लाज रखी है तो आगे भी रखेंगे। जब ऐसा विश्वास हो जाता है तब दिल में शांति रहती है, वरना चिंता 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 स्वभाव होता है व्यक्ति का कि सब कुछ ठीक होने पर भी आगे की चिंता व्यक्ति के मन में रहती है। दूसरी बात क्या होती है, काम शुरू करने से पहले चिंता होती है, काम शुरू करने के बाद काम का बोझ लगता है, सर पर बोझ लगता है, काम का बोझ। हम सब सारी जिम्मेदारियों का बोझ लेकर घूमते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि आपको बोझ नहीं लगता? स्वामी जी बोलते हैं कि पानी का घड़ा सर पर रखोगे तो बोझ लगेगा, परंतु समुद्र में गोता लगा देंगे, लाखों टन पानी होगा, आपके सर पर बोझ नहीं लगेगा। जब तक तुम यह मानोगे कि मैं करता हूँ तो बोझ लगेगा, जब यह मानोगे हम कुछ करते नहीं हैं, हम तो केवल साधन हैं, करने वाले तो भगवान हैं, तब सर पर से बोझ निकल जाएगा। यह दूसरी एक्सरसाइज है कि काम करते समय याद करो कि हम करता नहीं है, हम केवल इंस्ट्रूमेंट हैं। तीसरी बात, जब पूरा हो जाए काम तो 2 संभावना है, या तो सफलता मिलती है या तो विफलता मिलती है। सफलता मिल जाती है तो हमें अहंकार हो जाती है कि मैंने किया। उस समय याद करना है हमसे नहीं हुआ,
उनकी कृपा से हुआ है। और जब विफलता मिलती है हम हताश हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, तब याद करो वह भी भगवान की इच्छा से हुआ है। और भगवान कभी हमारा बुरा नहीं करते, वे जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। यह विश्वास हमें शांति देता है। और अंतिम बात, कभी कभार यह होता है कोई व्यक्ति हमारा बुरा करता है, इसने मेरा बिगाड़ा, इसने मेरा बिगाड़ा, यसने मेरा बिगाड़ा। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते हैं कोई किसी का सुधारता नहीं है, कोई किसी का बिगाड़ता नहीं है, करता भगवान है। उनकी प्रेरणा से सब कुछ होता है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, वही करता है जिनके हाथ में हमारी डोर है और वे भक्त वत्सल हैं, उनकी शरण में हैं। तो निश्चिंत हो जाओ, कोई हमारा बिगाड़ सकेगा नहीं, किसी ने नहीं बिगाड़ा। किसी से द्वेष मत रखो, उनको करता समझो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। यह शांति का राजमार्ग हमारे शास्त्रों ने दिखाया है, हमारे सत्पुरुषों ने, हमारे गुरुदेवों ने अपने जीवन में जीकर हमें सिखाया है। उनकी प्रधानता होने से जीवन में परम शांति की अनुभूति होती है। इस राजमार्ग पर चलने की बात हमारे गुरुदेव महान स्वामी जी महाराज अपने जीवन से हमें सिखाते हैं। और उन्होंने कहा है, यह जो आध्यात्मिक बात की कभी कभार हमें ऐसा लगता है ये तो बहुत ऊंची बातें हैं, परंतु वे कई बार हमें बताते हैं कि ये जो शास्त्र की बातें हैं, ये जो सिद्धांत है, यह जो एकांतिक धर्म की बात है, वह केवल कल्पना नहीं है। आज हमारे सत्संग में ऐसे हजारों भक्त आज हैं जो झंझावातों के बीच में भी अचल रहते हैं, अडिग रहते हैं, निश्चल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ऐसे हजारों हजारों भक्त हैं, ऐसे महान संत हमारे बीच में आज भी हैं। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे एक आदर्श संत आज हमारी सभा में भी उपस्थित है। पूज्य डॉक्टर स्वामी जी। पूज्य डॉक्टर स्वामी जी पिछले 60 वर्षों की उनकी आध्यात्मिक, प्रामाणिक आध्यात्मिक साधना, लगातार अपने गुरु के साथ उनका आध्यात्मिक दृढ़ संबंध, और उनके जीवन से हमें पल पल प्रेरणा मिले, ऐसा उनका व्यक्तित्व। पूज्य डॉक्टर स्वामी जी स्वयं मूर्तिमान आध्यात्मिकता हैं। महान स्वामी जी महाराज 5 साल पहले सारंगपुर में थे और उस समय वहाँ पर संतों का एक कार्यक्रम उनके सामने प्रस्तुत हुआ। कहाँ छात्र संत पढ़ते हैं, उनका कार्यक्रम हुआ। स्वामी की बातों के ऊपर एक क्विज थी। तो उसके अंत भाग में महान स्वामी जी महाराज ने पुस्तक मंगवाया स्वामी की बातों का। उसमें पहले प्रकरण में से एक बात स्वयं स्वामी जी ने निकाली और कहा, इस बात को पढ़ो, इस गुणातीतानंद स्वामी के इस उपदेश वचन को पढ़ो। उस उपदेश वचन में गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। तो कहा कि भगवान अन्य किसी साधन से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने निर्मल हृदय वाले संत के सत्संग से प्रसन्न होते हैं, और किसी साधन से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने निर्मल हृदय वाले संत के सत्संग से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब यह बात पढ़ी जाती थी तब महान स्वामी महाराज ने निर्मल हृदय वाले संत शब्द आया, तब महान स्वामी महाराज ने निर्देश किया डॉक्टर स्वामी के सामने कि ये निर्मल हृदय वाले संत हैं जिनके हृदय में भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसे संत के दर्शन से हमारा मन पवित्र हो जाता है, उनकी वाणी से। क्योंकि डॉक्टर स्वामी जी एक ऐसे महान संत हैं, वे जो भी बोलते हैं पहले आचरण में रख कर ही बोलते हैं, पहले अनुभव करते हैं और महीनों तक अनुभव करने के बाद वे कहते हैं कि इस मार्ग पर चलो। एक बात भी वे पहले नहीं बोल देते, वे वक्ता नहीं है, वे संत हैं। तो ऐसे संत की वाणी और दर्शन का लाभ हमें यहाँ 5 दिन तक मिला। शांति के राजमार्ग की बातें हमने सुनी, परंतु उस शांति का अनुभव करने वाले ये संत हैं। आज से 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले उनसे आनंद स्वरूप स्वामी ने पूछा था, आपके हृदय में कैसा रहता है? तो बोलते हैं कि पानी का भरा हुआ जैसे महासरोवर हो, इस तरह से अंतर में छल छल शांति का अनुभव होता है। और कई बार
कई बार सप्ताहों तक ऐसा चलता है, जैसे बाढ़ आती है समुद्र में, जिस तरह से भरती आती है ना, उस तरह से आनंद की भरती अंतर में आती रहती है। तो जो आध्यात्मिक आनंद जिसको हम कहते हैं, इसका जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसे महान संत पूज्य डॉक्टर स्वामी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो हम उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं कि वे भी हमें ऐसे आशीर्वाद दे, हम भी आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर बने और इस राजमार्ग पर चलकर हम परम शांति का अनुभव जीते जी कर सके। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।